Good afternoon to all of you, respected Principal Sir, Vice Principal Sir, SNTC Sir, my colleagues, and a very warm welcome to all of you in this CBSE training session. Today, we are assembled here for a offline training. It means in-house training. And the topic of today is education for peace. What can be said in this topic and what cannot be said in this topic? Both questions are vital for all of us because education means not only to make a person. Its deep meaning is very vast, and when we were the student of, especially in B.Ed course, then we knew what is education, what is the purpose of education. It gives us not only social benefit, not only economical benefit, but also personal benefit also. Education makes a person perfect. Without education, a man is not perfect, it cannot be said. But if a person is imperfect, and if he is in education, then he will be perfect, it can be said certainly. So, what is the role of education in our life? There are a number of arguments in the favor of this topic. Men are social animal. Men are social animal, it has been said by Aristotle. Was a great philosopher, and that person told this fact that education is such a thing which makes men differ from animal. Man has thinking capacity, animal has also thinking capacity, but the more development depends on education. If a person is highly educated, our society will be benefited from it. And in this time, when the whole world is facing the problem of war, like Ukraine and Russia, in our Western Asia and other places also, I know it properly. शांति नहीं तब तक जब तक, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम न हो, नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी का बहुत कम हो. शांति तभी समाज में स्थापित होती है. रामधारी सिंह दिनकर. In this way, we can say that what is the importance of peace and what a vital role it can play in our life. It can be provoked only by education. If we are educated, our thinking capacity will be high, our moral values will be high, and a person who is not educated, his thinking capacity and a thinking capacity of a educated person will be varied. No doubt in it. So, education is not only for our economical development, but also it will establish peace in our society.
There are a lot of examples in our society when persons quarrel, when persons fight, then it can be controlled by educated person. As you know, the last scene of the Mahabharata, what happened? It was the scene of Ashwatthama and Arjun. Both have destructive weapons, and in this time the Guru Maharshi Vedvyas and another came and they settled the matter. Only then the war of Mahabharata finished. So peace plays a vital role in our life, and without peace we cannot think freely, we cannot imagine freely, especially in education. Its role is more relevant. And in this topic, our resource person, Mr. Birendra Prasad sir, will give us some special clues. I am present here for his introduction. As everybody knows that he is MSc in physics, but physics and mathematics both are his favorite subjects, and he teaches in upper sections, and he is a very talented teacher for our school, because the result of our school depends on such like teachers. And today we are lucky that we have got a chance to hear from Birendra sir. Now I do not like to waste the time, because he has some special thing related to this topic. So I would like to invite Mr. Birendra sir. Thank you, sir. Respected Principal sir, Vice Principal sir, and all our colleagues. Education for peace, that means peace for equation, equation for peace या peace for equation. एजुकेशन शांति के लिए शिक्षा चाहिए या शिक्षा के लिए शांति चाहिए। अभी के समय में दोनों बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्लास में इंटर करते हैं तो हम लोग के लिए शांति रहेगा, एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन, लेकिन हेयर द टॉपिक इज पीस फॉर पीस। किस लिए एजुकेशन का क्या महत्व है कि उसके लिए हमको शांति लाया जाए। मतलब शांति लाने के लिए हमको एजुकेशन हर एक मोड़ पर जाना पड़ेगा। और जैसे इस विद्यालय में ही एक उदाहरण है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, और जब पीस है इसका मतलब है, या एजुकेशन का अर्थ है कि आप प्रॉपर वे में किसी भी काम को अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, रेगुलर वे में प्रॉपर ढंग से किसी भी काम को आप कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने पहले बोल दिया, जैसे यहाँ शोभा जी एक आई है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन वह अपने प्रत्येक काम को प्रॉपर ढंग से रेगुलर वे में वह करती है, कहीं भी हिचकिचाती नहीं है। तो दैट मीन्स एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन यानी पीस भी संभव है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके समाज में मिलेंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है उसके अनुसार कुछ तो गाइडलाइन दिया गया है, उसके अनुसार तो पीस फॉर एजुकेशन फॉर पीस की चर्चा ही यहाँ पर है। लेकिन दोनों वे में हम समाज में ढूंढते हैं या देखते हैं तो दोनों स्थिति में यह लागू है। हाँ, परसेंटेज कम है और ज़्यादा है। परसेंटेज इसका विदाउट एजुकेशन पीस आपको कम मिलेगा, लेकिन समाज में बहुत सारे आदमी ऐसे मिलेंगे,
कोई ज्ञान नहीं है, वो अपना सिग्नेचर भी करना नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को वह आपके सामने बिना देखे हुए बोल देंगे, कर देंगे, और उनका व्यवहार भी इस प्रकार से मिलेगा। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सबसे पहला नाम आ गया पीस बिगिनिंग विथ ए स्माइल, टेस्ला जी। मदर टेस्ला की बात आती है तो सब इनको पीस की बात यहाँ आई है तो इनका विश्व में पुरस्कार भी इनको मिला है, शांति के रूप में विश्व में पुरस्कार मिला है। कब मिला है पता नहीं, लेकिन इनको मिला है। अब इनके नाम सबको जान रहे हैं, इनका चेहरा भी फेस स्माइल है। इसका मतलब है एजुकेशन जब आपको प्राप्त है तो निश्चित रूप से स्माइलिंग होगा, कहीं भी हो। और जब एजुकेशन है वह स्माइलिंग नहीं है तो वह एजुकेशन आपके लिए बेकार हो गया। कोई एजुकेशन का न तो आप उसका लाभ समाज में दे सकते हैं, न घर पर दे सकते हैं, न अपने आप को कर सकते हैं। तो स्माइलिंग चेहरा यहाँ दिखाने का रूप यही है कि जिनके पास एजुकेशन है और इनको तो विश्व का शांति पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए स्माइलिंग होना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्थिति में कहीं पर भी आप हों, लेकिन इस तरह से चेहरा में आप भाव झलकना चाहिए कि हाँ हमारे पास एजुकेटेड हैं, हमारे पास एजुकेशन है, और उस एजुकेशन के कारण दूसरे को भी एजुकेट हम कर सकते हैं। अब उसी पर डिफिनीशन आ गया। डिफिनीशन में कई एक तरह की बात आती है, कहता है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द वैल्यू, नॉलेज, एल्टीट्यूड, स्किल एंड बिहेवियर ऑफ लाइफ विथ वन सेल्फ अदर एंड द। अब प्रश्न यहाँ अल्टीट्यूड है तो अल्टीट्यूड तो बहुत तरह के हैं, निगेटिव अल्टीट्यूड भी हो सकता है, पॉजिटिव अल्टीट्यूड भी हो सकता है। अल्टीट्यूड में यहाँ पर हम लोग सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, कहाँ पर निगेटिव अल्टीट्यूड है, कहाँ पॉजिटिव अल्टीट्यूड है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर अल्टीट्यूड की चर्चा है। नॉलेज तो आपका डेवलप होगा, समाज बिहेवियर, हाँ एजुकेशन के जो वास्तव में एजुकेटेड हैं उनका बिहेवियर भी एजुकेशन के जैसा होना चाहिए। लेकिन ये समाज में बहुत लोगों के पास देखा जाता है, लेकिन कुछ के पास ये देखा भी नहीं जाता है कि उनके पास एजुकेटेड है, देख करके लोग नहीं कह सकता, उनके बिहेव से नहीं कह सकता है कि ये एजुकेटेड आदमी हैं, या उनके पास एजुकेशन है ही नहीं। कहता है पीस एजुकेशन एक्टिविटी प्रोमोटेड द नॉलेज, स्किल एंड एल्टीट्यूड हैव बीन डेवलप पीपुल आइदर प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस पीसफुली और क्रिएटेड सोशल कंडीशन कंडक्टिंग टू पीस। अब है जहाँ पर बहुत अधिक संघर्ष हो रहा है, बहुत पर निगेटिव चीज़ है, तो एजुकेटेड मतलब है कि उस निगेटिव चीज़ को आपको शांत करना चाहिए अपनी कला से, अपने ज्ञान से, अपने किसी भी प्रकार का नॉलेज का उपयोग करके उस माहौल को जो बहुत बिगड़ा हुआ है कैसे आप शांत करेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि उसको शांत करने में या उसको अपने मैनेज करने में थोड़ा समय लगेगा, उसको बहुत तरह का एक्टिविटी देना पड़ेगा, बहुत तरह का कल्चर से समझाना पड़ेगा, बोल कर करना पड़ेगा, समझा कर करना पड़ेगा, तब वह उस रूप में वह नॉर्मल में आ सकता है। और इसी तरह क्रिएटेड सोशल कंडीशन, और सोशल में भी इसका उपयोग किस प्रकार से हम करें कि कहीं भी हो, जिस रूप में भी है वह पीसफुल वहाँ पर आ जाए, शांतिपूर्वक वहाँ को कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन या पढ़ाई में ही, कहीं भी हो, किसी भी हम प्ले ग्राउंड में हैं वहाँ भी शांति चाहिए। किसी भी मेले में ही हम गए हैं, कोई जगह फेस्टिवल है वहाँ गए हैं, वहाँ पर भी हुड़दंग होता है। तो आप अपने व्यवहार से, अपने नॉलेज से, समाज के नॉलेज से समाज को कैसे हम व्यवस्थित करें, ये सबसे बड़ा एजुकेशन का रूप है। हाँ उसके लिए एजुकेशन अलग अलग रूपों में दिया जाता है, हम लोग भी देते हैं और लोग भी देते हैं। जो अनएजुकेटेड है वो भी उस तरह का एजुकेशन दे देते हैं जो किताब में लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन उसको समझना हम लोगों की बात है या समाज की बात है या जिसको जो कहा जाता है उसके प्रति है कि वह कितना उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कितना उसको वह समझ रहा है। स्कूल लगता है स्कूल फॉर पीसफुल लिविंग। अब इस स्कूल की बात आती है तो हम लोग जितने भी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी स्कूल से संबंधित है। एक विद्यालय में आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर नाउ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द प्लेस दैट कैन बी इम्प्रूव और वर्सिट
commodity a peace situation, because of the school is the most appropriate challenge or vehicle that can be fostered to the development of a peaceful and the harmonic. वास्तव में स्कूल हमारा, अभी समाज भी इस चीज़ को मान रहा है, स्कूल ही एक ऐसा सोर्स है जो विद्यार्थी को एजुकेशन दे करके इस तरह से ला करके, और ख़ास करके हमारा जो विद्या भारती है, विद्या भारती में इस बहुत आगे है। बहुत जगह पर, ऐसे जगह पर एकल विद्यालय खोल दिया है। किसके लिए खोला? जो एकदम अनपढ़ है, जिसको ज्ञान का कुछ रूप नहीं है, और उसको हम लोग भी क्या करते हैं, हेल्प कर रहे हैं। एकल विद्यालय एक नहीं, हज़ारों की संख्या में खुला हुआ है। और ऐसे जगह पर जहाँ पर विद्यालय, ऐसे लोग हैं जो कुछ जानते ही नहीं हैं, न कुछ करना जानते हैं। लोगों को देख करके, कुछ अच्छे व्यक्ति को देख करके भी क्या होता है कि वह उन लोग हट जाते हैं या उनसे स्ट्रगल करना चाहते हैं। लेकिन विद्यालय खोल करके ऐसा किया गया कि वहाँ भी शांति में एजुकेशन दिया जाए, जिसके उनको भी थोड़ा सा शांति मिले और एजुकेशन से समझ करके अपने आप को, वह बिहेव को समझें। इसमें विद्या भारती हम लोगों का बहुत क्या कहिए, विद्या भारती अपना जो रोल डेवलप कर रहा है, बहुत बड़ा डेवलप कर रहा है। उसमें हम लोग भी उसका हेल्पफुल हैं कि इस तरह की संस्था को का करके छोटे छोटे रूप में विद्यालय खोल करके एजुकेशन को दे रहा है कि वहाँ के लोग भी इस तरह से अपना शांति को बनाए रखें। That the diminish the for our community which have been the knowledge of the quite a long time for earning for the local community. Long time मतलब अपने whole life की बात आती है। लॉन्ग टाइम, जब से जन्म पैदा हुआ से लेकर मरने के पहले तक वह एजुकेशन को सही रूप में करे, जिससे वह शांति रूप लाए, और अपने घर परिवार में भी उसकी चर्चा होनी चाहिए। लोग करते हैं, लेकिन समय यदि मिले, समय यदि हम लोगों के पास भी है, तो जो अज्ञानी है उसको भी हम ज्ञान के रूप में एजुकेशन दे करके कुछ समझाने का कोशिश करना चाहिए। और लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते भी हैं। Meaning of the peaceful education, the highest from the objective of any education is included peace, and it is the essential value of the created by the every individual, the father and mother. अब दो शब्द यहाँ फादर एंड मदर। फादर एंड मदर का, फादर का रोल तो बाद में है, सबसे पहले उसका मदर का ही रोल है। जब बच्चा को जन्म देती है तो उसकी माँ, बच्चे की माँ हर एक चीज़ को समझ जाती है, क्यों रो रहा है, क्यों क्या कर रहा है, कभी इसको भोजन की ज़रूरत है। वह बोलता नहीं है, मांगता नहीं है, सिर्फ उसके एक्टिविटी से माँ समझ जाती है। पिताजी का रोल तो बाद में आता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद ही पिताजी उसको समझते हैं। लेकिन यहाँ फादर और मदर दोनों दिया है। इज़ द फर्स्ट टीचर टू देयर चिल्ड्रेन एंड पीस ऑफ द नेचुरल इन द फैमिली। First teacher, not father. This is the mother is the first teacher of any child. किसी बच्चे का पहला जो टीचर है वह माँ ही है। माँ के बाद फादर आते हैं, या उसके परिवार में जितने भी घर के लोग हैं वो आते हैं। उसके बाद ही यहाँ टीचर की आवश्यकता होती है, जब वह विद्यालय में आते हैं। अब तो सरकार 3.5 बरस से कह दिया है आने के लिए, पहले तो 5 बरस के बाद ही आना पड़ता था विद्यालय में। तो अब उस तरह की स्थिति, तो बच्चों का फर्स्ट टीचर हमारा क्या है? मदर ही है, माँ ही है, जो सब कुछ अज्ञान बने बिना बोले हुए उसकी एक्टिविटी से, उसकी कला से, उसको देख करके या अनुभव करके सब माँ समझ जाती है कि भूखा है कि प्यासा है कि क्या करना चाहता है, और उसके अनुसार वह काम करता है, काम करती है। और द पीस नेचर एट द होम अगेन इन द इनहेल्स ऑफ द स्कूल। सबसे पहला उसका पीस कहाँ मिलेगा? पीस घर पर है, नेचुरली है। और नेचर के अनुसार छोटे बच्चे को, हम लोग भी कहीं जाते हैं, आप लोग कहीं जाते हैं, तो छोटा बच्चा रहता है, उसको प्यार से लोग बुलाता है, वह भी आता है, आपकी एक्टिविटी को, आपकी भाषा को समझ करके आपके पास वो आ जाता है, हंसते हुए आ जाता है। कुछ बच्चा ही ऐसा है जो कि नहीं आता, लेकिन अधिकतर बच्चा हंसते हुए आपके पास आ जाएगा। आपकी एक्टिविटी से, आपकी जो कला है बोलने का, एक्टिविटी करने का, उसके अनुसार आपके पास हो आ जाएगा। तब उसके बाद वह विद्यालय जाता है। पीस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट विद द प्रैक्टिस एंड द स्पिरिचुअल conditional, and it can be implies a state of the inner and claim of the। अब स्टेट इनर, उसके अंदर भी बहुत तरह की बात ऐसी होती है
भावना के रूप में भी हमारे स्टेट ऑफ द इनर की बात आती है तो कहता है बड़े रूप में उसको भी हम फैला लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका दोष भी उसके सामने ही आ जाता है। दोष क्या है, उसके लिए हमको शांति कैसे लाया जाए, इसकी चर्चा हम लोग नहीं, बड़े बड़े लोग करते हैं, छोटे छोटे रूप में हम लोग हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। जैसे प्रदीप जी अभी कहे कि देश एक दूसरे से झगड़ रहा है, लगता है कि विश्व युद्ध हो ही जाएगा। अब वहाँ पर कोई एजुकेशन की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमारे समय से ईगो है। एजुकेशन की वहाँ कमी नहीं है, या ईगो में सबसे बड़ा चीज़ वहाँ छिपा हुआ है, सबका स्वार्थ छिपा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा सबका स्वार्थ छिपा हुआ है। उस स्वार्थ के पीछे या ईगो के पीछे लगे हुए हैं। क्या होगा नहीं होगा आप आने वाले समय में ही बताएगा, लेकिन इस तरह का युद्ध वहाँ पर भी है। अब वहाँ पर किसी तरह का एजुकेशन का कोई कमी नहीं है, सब बड़े बड़े लोग हैं, और एक देश दूसरे देश से भी झगड़ रहे हैं, दूसरा तीसरा में इन्वॉल्व हो रहा है। कोई शांति, इंडिया हमेशा शांति के लिए ही जाता है वहाँ पर। इंडिया जब भी वहाँ पर उसका सहयोग करता है तो शांति के रूप में ही करता है, लेकिन बात किसकी कौन मानी जाए, सब अपने अपने ईगो में लगा हुआ है, स्वार्थ में लगा हुआ है। कब क्या होगा आगे चल करके ये कहना मुश्किल है। डिफिनीशन ऑफ द पीस एजुकेशन फिर अब दार्शनिक के आधार पर यहाँ पर दो तरह का डिफिनीशन दिया गया है। एक दिया गया है एज ए स्टेट ऑफ द क्वाइट ऑफ द ट्रांसक्विलिटी फ्रीडम फ्रॉम द डिस्टर्बेंस और एजिटेशन क्लेम रिपोज। दूसरा है अकॉर्डिंग टू फायर 206 का पीस ऑफ एजुकेशन इज द मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म के रूप में ले लिया है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए कल्चर एंड द वायलेंस ऑफ द कल्चर ऑफ पीस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब है कल्चर की बात आती है तो सबका, पूरे व्यक्ति का कल्चर अलग अलग है, देश का भी कल्चर हो जाता है डेवलप। आप हमेशा या हम लोग हमेशा इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है, उसका कल्चर कुछ अलग है, मेरा कल्चर कुछ अलग है। अब कल्चर है, सोच का अंतर हो जाता है, उसका सोच कुछ अलग है, मेरा सोच कुछ अलग है। तो हर एक देश में भी कल्चर का रूप होता है, व्यक्ति व्यक्ति का रूप हो जाता है, समाज समाज का रूप हो जाता है, और कल्चर के रूप जब आती है तब यहाँ पर जातिगत कुछ बढ़ जाते हैं। अब जातिगत बढ़ने के बाद एजुकेशन पूर्णतः ड्रॉप हो जाता है। जब जातिगत जब बढ़ता है तो एजुकेशन पूर्णतः ड्रॉप हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लोग अपने अपने जाति के आधार पर एजुकेशन के रूप में ईगो ले लिए, हम अपने स्थान पर हैं, वो अपने स्थान पर अपना लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और उसका वास्तव में उसमें एक ऐसा पर्सन हो, उस अशांत को, उस संघर्ष को कोई जब शांति देता तो वास्तव में एजुकेटेड आदमी हुआ है, वास्तव में एजुकेशन उसके पास है। इसका एक उदाहरण हम देते, याद आ गया बहुत पहले का, आज से करीब 50 या 40 वर्ष तो ज़रूर हुआ है। अब गांव की बात कहते हैं, दो गांव में झगड़ा हो गया, दो गांव में दो व्यक्ति से झगड़ा हो गया खेत के कारण। अब खेत के कारण हो गया, दोनों गांव की दूरी 1 किलोमीटर है। अब दोनों एक दूसरे को लड़ गया, दोनों तरफ से गोली बंदूक भी निकल गया। अब उसको कौन शांत कराता है? अब फिर कुछ लोगों को लग रहा है कि थोड़ा शांत भी हो जाना चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। एक व्यक्ति ऐसे निकले कि एकदम खाली हाथ गए, खाली हाथ वहाँ पर चले गए बीच में, और कहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, दोनों तरफ कम से कम अपना बंदूक जो है उसको रख दो, और दोनों तरफ से जो मेन आदमी है उसको बुलाए। अब बुलाने के बाद वहाँ पर जो भी झमेल हुआ उसको वह शांत वहाँ पर किए, फिर एकदम ड्रॉप टू साइलेंट हो गया, कुछ नहीं। तो इस तरह का आदमी, हाँ, वह आदमी किसी तरह का एजुकेशन उनके पास नहीं, सिर्फ साइन करना जानते हैं। तो एजुकेशन तो वास्तव में उनमें आया कि उस तरह के माहौल को उसमें क्या होता है कहना मुश्किल है, लेकिन उसको एकदम शांत करके वो भी अपना घर चला गया, ये भी अपना घर चला गया, वो भी अपना आ गए, फिर सब तरह से फ्री है। तो एजुकेशन का अर्थ ये है, एजुकेशन का मतलब है डिग्री हम बहुत लिए, बहुत कर लिए, माने उससे नहीं है, लेकिन एजुकेशन का अर्थ ये होता है, वहाँ पर समझने की बात आती है। तो इस तरह का उदाहरण यहाँ पर मिलता है, गांव घर में भी, यहाँ भी कभी कभी मिला है ऐसा। कहीं पर मोहल्ला में भी झगड़ा हो गया, कहीं पर झगड़ा हो गया, उस तरह की बात आती है तो कोई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनको जाकर के वहाँ पर स्थिर हो गया, शांत है, और उसमें इस तरह का समझौता कर देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि वह दोनों व्यक्ति मान गया, या तो समाज भी मान गया, एक समाज दूसरे समाज को भी उन्होंने मान लेता है और उसकी चर्चा वह कर देता है, और फिर जैसे प्रोसेस है वैसे अपना काम करते रहता है। सब जगह पर इस तरह की बात आती है।
According to the John Wayne, peace education is the grounded in active citizenship, preparing learners of the institution and the participating in the democracy throughout problem processing and the problem solving education and the community to the transformative action in our society। आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन की बात आती है तो एक्शन में आप वास्तव में ग्राउंडेड है, ज़मीनी बात होनी चाहिए। ग्राउंडेड मीन्स क्या, ज़मीनी बात होनी चाहिए। आए बार बार चर्चा कभी कभी होती है, क्लास में भी हम लोग जाते हैं तो कहते हैं भाई पढ़ाई तो पढ़ना है लेकिन ग्राउंड से ज़मीनी बात पढ़ो, बेसिक चीज़ पढ़ो। ज़मीनी मीन्स क्या, बेसिक चीज़ पढ़ो। जब बेसिक चीज़ पढ़ेगा तो आपको आगे आगे धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ग्राउंडेड का मतलब है ग्राउंडेड एक्टिविटी, कुछ ऐसा एक्टिविटी करके दिखाया जाए कि समाज के छोटे छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, उससे और बड़े बच्चों को उसको देख करके वह समझ जाए कि वास्तव में एजुकेशन ये है। किताब तो आपका सामने है लेकिन एक ग्राउंडेड बात कह करके, ग्राउंडेड ज़मीनी बात कह करके, धरातल पर बेसिक चीज़ कह करके किसी भी चीज़ को छोटे से लेके बड़े तक को वह समझाया जा सकता है, किया जा सकता है। और उस तरह का यदि एजुकेशन दिया जाए तो वास्तव में शांति बना रहेगा। वह एजुकेशन को सही रूप से समझेगा, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। सोल्विंग एजुकेशन एंड द कमिटेटिव टू द ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन इन आवर सोसाइटी। आज इस तरह का सोसाइटी में भी इस तरह की बात होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये देखा जाता है कि सोसाइटी में एक दो ऐसे मिल जाएंगे, गांव घर में भी देखेंगे, मोहल्ला में भी देखेंगे कि वह कुछ न कुछ उसमें लुक्कड़ लगाता रहेगा, लेकिन उसको भी समझाने वाले समझते हैं नहीं तो दरकिनारे अपने आप हो जाते हैं। दरकिनारे अपने आप हो गया। यदि आप बात को नहीं समझे, पूरा सब एकजुट हो गया तो वो अपने आप अलग हो जाएगा, फिर वह घूर करके आपके सामने नहीं आएगा। तो एजुकेशन का मतलब ये है कि किसी तरह से हमको प्रॉपर वे में, जनरल वे में एक्टिविटी को सही रूप में करना है, चाहे वह वर्क किसी प्रकार का हो। एजुकेटेड मतलब हाई क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है, लेकिन उसको इस तरह एजुकेशन दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, समझाया जाता है, अपना एक्टिविटी से, अपना व्यवहार से, अपना बात से, अपना विचार से जो भी है उसको किया। एक बार में नहीं समझे, 2 बार समझाया जाता है, 3 बार किया जाता है, 4 बार किया जाता है, लेकिन करने के बाद उसको भी दिमाग पर इस तरह की बात आती है। अब देखिए एजुकेशन में पीसफुल एग्जाम में यहाँ पीस एग्जामिनेशन दे दिया, नॉलेज, एल्टीट्यूड और स्किल। नॉलेज के मतलब एक ज्ञान की बात है। अब ज्ञान कैसा है ये आप समझें। ज्ञान कैसा है, हम लोग ज्ञान बच्चों को भी देते हैं, वो कैसा डेवलप कर रहा है, उसका एल्टीट्यूड आप बोल रहे हैं उसका निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये कहना मुश्किल होगा। जितने भी क्लास में रहते हैं उसमें 10% ऐसा रहता है जिसका एल्टीट्यूड निगेटिव ही रहता है। कितनों कहिएगा लेकिन वही सुनेगा, समझते हुए भी आपको जान के बोल देगा कि ना यही चीज़ है सर, उसका अपोजिट ही बोल देगा। तो ये एल्टीट्यूड सोचने की कैसा है, स्किलिंग, जैसा आप स्किल डेवलप कीजिएगा उस तरह से आपके मन में विचार उत्पन्न होगी, और उसी तरह का विचार उत्पन्न नहीं होगा, आपका संस्कार भी उसी तरह से फिर डेवलप करते चला जाएगा। छोटे बच्चे से यदि स्किल उसका डेवलप सही रूप से है तो उसका स्किलिंग पावर भी, आपके बोलने की क्षमता, बात विचार करने की क्षमता या एक्टिविटी किसी को कुछ करने की क्षमता भी उसी तरह से उसका डेवलप करते चला जाता है। और उसी में जो हम लोग कहते हैं संस्कार की बात आती है, तो ये स्किलिंग उसका है, कितना आप एडेप्ट कर रहे हैं उसको, कितना आपके सामने वो बात आई, उस पर वह निर्भर करता है कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब छोटे बच्चों से यदि किसी को इस तरह से सिखाया जाता है प्रॉपर ढंग से, हम लोग ये 2 को करके तो तीनों अपने आप आ जाएगा नॉलेज। स्किलिंग उसका सही होगा, एल्टीट्यूड उसका सही होगा तो नॉलेज तो अपने आप हो आ जाएगा। हाँ, ये दोनों यदि सही है तो नॉलेज फिर सही नहीं आएगा, नॉलेज भी उथल पुथल होता रहेगा। हाँ, नॉलेज भी 2 तरह की हो जाती है। एक है कि हम लिख करके किताबी कीड़ा, हमको एग्जामिनेशन में 90% ले आना है, वो भी नॉलेज है। और एक 70% ला करके भी समाज में उसका बहुत बड़ा रूप है। 70% ला करके भी समाज में उसका ऐसा रूप है कि 90% उसके पीछे है। हाँ, वहाँ पर वो है अपना कि परसेंटेज ले आया, तो वो सब किस पर निर्भर करेगा, स्किल और एल्टीट्यूड पर निर्भर करेगा। आपका सोच किस प्रकार सा है उसी पर वह निर्भर करता है। जैसा कि हम लोग अपने विद्यालय में भी देखते हैं, और इसी स्किल और एल्टीट्यूड को करने के लिए भी विद्या भारती बहुत सारे स्कूल को खोला है। हम लोग के विद्यालय में भी 2 संस्कार केंद्र चल रहा है। 2 संस्कार केंद्र हम लोग पता है विद्या भारती के जितने स्कूल हैं सब में चल रहा है। तो किसके लिए है, वह बहुत बड़ा वो पढ़ा करके हाई लेवल पर ले जाएगा इसके लिए नहीं है।
आप में एक सुदृढ़ ज्ञान भर दे, आप में एक ऐसा सुविचार भर दे कि समाज में उसको सही रूप से चलना सीखे, बैठना सीखे, बोलना सीखे, बड़ा है छोटा है उसका रिस्पेक्ट करना सीखे, किसके पास हमारा साथी है, फ्रेंडशिप है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें। इस तरह के लिए जो विद्या संस्कार केंद्र चल रहा, वास्तव में उसका नाम ही संस्कार केंद्र है, तो इसी से वह अटैच है। और विद्या भारती तो इसमें सुपर है, पूरे जितना भी शिक्षा है पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में सबसे बड़ा विद्या भारती इस तरह का पठन पाठन शुरू किए हुए है, और वैसे जगह किया हुआ है जहाँ पर कोई उसको देखने वाला नहीं है। अब उसी में सबका डिफिनेशन दे दिया है, टू हेल्प अ स्टूडेंट डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज द टेरिटरी ऑफ द पीस, ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन का जो राइट है सभी का, प्रत्येक व्यक्ति का, ये तो हमारे देश का ही ऐसा रूल है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का भी अधिकार है, चलने का भी अधिकार है, सब तरह का अधिकार ह्यूमन राइट में दे दिया है। अब उसको आप किस रूप में डेवलप करना चाहते हैं, किस रूप में अपने समाज में लाना चाहते हैं, किस रूप में उसमें अपने समाज में परोसना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। और वह निर्भर करेगा आपका स्किलिंग कैसा है, आपका स्किल कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, उस पर ही वह डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि किस प्रकार से आप करना चाहते हैं। ह्यूमन राइट की बात है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्कल नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड टॉलरेंस एंड द रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपुल एंड देयर कल्चर। देखिए ऑल पीपुल की बात यहाँ आ गई, तो ऑल पीपुल क्या है, जितने भी लोग हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि वह अनपढ़ है, वह पढ़ा लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, एक किसान है, एक व्यापारी है, इस पर निर्भर नहीं करता है। वो निर्भर करता है कि सभी को आप जब इस तरह का स्किलिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, शांति बनाना चाह रहे हैं, पीसफुल है, तो आपको सबको एक रूप में देना पड़ेगा। एक इंजीनियर है तो उसका बिहेव हम दूसरे रूप में कर दें, एक किसान है उसका बिहेव, किसान भी एक बूढ़ा है, इंजीनियर भी बूढ़ा है, तो बूढ़ा भाई इंजीनियर साहब हैं उनको ज़रा प्रणाम अदा कर दें, किसान को हम नहीं, तो किसान है, वो कमाने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको जो रिस्पेक्ट शब्द है उस सबके पास रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, रिस्पेक्ट अपना कैटेगरी के आधार पर करें, इसलिए यहाँ पर ऑल पीपुल एंड देयर कल्चर भी निर्भर करता है। आप कल्चर का डेवलपमेंट आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, इसके पहले भी था। कल्चर का डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर से ही मिलेगा, और घर के पहले उसके माँ पिताजी से मिलेगा, फिर उसके बाद दादा दादी हैं, घर में क्या आपका कल्चर हुआ। यहाँ हम लोग भी क्लास में कहते हैं तुम्हारा घर में इस तरह का वातावरण गाली दे देता है, यहाँ भी गाली दे देता है, तो कल्चर घर का है। यहाँ विद्यालय का कल्चर नहीं है कि किसी को सिखाया जा रहा है कि तुम इस तरह से करो। तो ये कल्चर जो डेवलपमेंट है या कल्चर की बात आती है तो वास्तव में शुरू बाल्यावस्था से ही उस पर निर्भर करता है कि आप किस कल्चर में पढ़े हैं, किस कल्चर में ढले हैं। इसीलिए विद्या भारती जंगल में भी खोल दिया है। क्यों? उसके कल्चर को चेंज करने के लिए, उसके कल्चर को डेवलप करने के लिए, उसमें कुछ ऐसा सोच हो, कुछ ऐसा बुद्धि ऐसा इस तरह का प्रकट करे, स्किलिंग करे, उत्पन्न करे, जिससे उसका समाज में भी थोड़ा सा डेवलप कर सके और लोगों के सामने जा कर के वह सही रूप से बैठ सके, सही रूप से वह पढ़ सके, सीख सके, चलने के लिए, बोलने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए सब कुछ सीख सके। इसलिए यहाँ पर पीपुल या ऑल पीपुल एंड देयर कल्चर की बात आती है। तो कल्चर एक बहुत बड़ा, वास्तव में एजुकेशन के पहले कल्चर ही डेवलप करना पड़ेगा। एजुकेशन बाद में आता है, उसके पहले कल्चर 2-2.5-3 बरस के अंदर में आप कल्चर आप डेवलप करना चाहते हैं या बहुत कुछ करते हैं तो बहुत कुछ वह सीख सकता है। और एजुकेशन तो फिर है ही, एजुकेशन तो एक ऐसा सरकार भी चला दिया कि वृद्धावस्था में भी उसको एजुकेटेड करना चाह रहा है। लेकिन कल्चर आपको तो सीखना पड़ेगा, जब से आप जन्म लिए हैं उस समय से ही कल्चर आपको सीखना पड़ेगा, तभी वह संभव हो पाएगा। और नहीं तो कल्चर भी बाद में सीखने के लिए बूढ़ा सोगा मैंने पोस्ट नहीं मानता, वही कहावत है। इसलिए उसको तो डेवलप करना पड़ेगा, बहुत नीचे से ही करना पड़ेगा। उसकी एटीट्यूड
to enough student to respect other people and their culture and motivate them to the search of the peaceful confidence resolution in their lives। अब देखो यहाँ पर सब कुछ जो पहले था, पीपुल की चर्चा यहाँ पर भी है, कल्चर की चर्चा यहाँ पर भी है। मोटिवेट करना हुआ कहते घर में मोटिवेट करना, कल्चर सिखाना मन का, उसको मोटिवेट करना है। तुमको क्या करना है, कैसे तुमको सुबह में उठ कर के क्या करना चाहिए, शाम को फिर क्या करना चाहिए, दोपहर को क्या करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, सब उसी में आता है। मोटिवेट देम टू द सर्च फॉर द पीसफुल, और कहता है शांति के लिए उसको सर्च करो। तो आप सर्च करने की बात आ जाती है तो यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, लेकिन एजुकेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आएगा। एजुकेशन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वह डेवलप करेगा। तो वास्तव में जिसका कल्चर पहले से ही डेवलप है तो उसका एजुकेशन फिर आसान हो जाता है। जो पहले से उसका कल्चर डेवलप है, सब कुछ है, तो वह उसका जो एजुकेशन है वह बहुत हेल्पफुल करेगा। और नहीं तो हेल्पफुल वह कल्चर आपका यदि बच्चे से सही नहीं है तो फिर आपका एजुकेशन कोई काम नहीं करेगा, बर्बाद होकर रह जाता है। तो इसलिए दिया है सर्च फॉर द पीसफुल के लिए आप उसको मोटिवेट करें। और पूरे आप यदि वास्तव में कल्चर आपका डेवलप हो गया, आप अपने बच्चों का कल्चर यदि आप डेवलप कर दिए तो वह उसका होल लाइफ वह कल्चर बना रहेगा। बहुत बड़ी घटना कुछ ऐसी घटती है जिसके कारण इस तरह का कल्चर डेवलप या कुछ रुकावट आ जाता है, लेकिन कल्चर तो वहाँ पर डेवलप कर जाने के बाद कोई नहीं उसको रोकता है, सही रूप से वह कहता है। हम लोग भी कहते हैं एक सभ्य नागरिक बनो, तो कब होगा, जब आपका कल्चर डेवलप करेगा, नहीं तो सब नागरिक होना भी मुश्किल हो जाएगा। अब उसके बाद स्किल है। स्किल की बात भी वही है जो पहले हम लोग स्किल टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप दियर एबिलिटी। अब उसकी क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो क्षमता जो ठीक है, एजुकेशन के मामले में क्षमता को हम बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन विदाउट एजुकेटेड क्षमता तो घर में ही बढ़ती है। बहुत सारे चीज़ को देख करके ही, जैसे इसके पहले आया एल्टीट्यूड के बारे में आया, उसी में उसकी चर्चा है। एबिलिटी टू द वर्क टुगेदर एज ए ग्रुप, टीम वर्क। अब टीम वर्क की बात कब होगी, जब वह बच्चा होश में आ जाएगा, जब वह बच्चा को थोड़ा ज्ञान होगा, तो एक बच्चा को देख करके दूसरा बच्चा चला जाता है। कहीं 5 बच्चा तो पाँचों एक जगह पर हो जाएगा, कुछ न कुछ करते रहेगा। वह उसका टीम वर्क होगा, माने उसी तरह का उसका कल्चर दिया हुआ है और उसके अनुसार वो समझ गया कि हम लोगों को एक ग्रुप में है। और वहाँ से यदि किसी को आप हटाना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। फिर उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ उसको समझाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तब वह आपकी बात को मानेगा। और नहीं तो उसी में अपना उलझा हुआ है और उसी में अपना समय बिता रहा है। तो वर्क टुगेदर ये है, लेकिन आगे चल कर के जब थोड़ा सा डेवलप होता है तो कोई भी काम करने के लिए, हाँ, सभी काम एक साथ नहीं हो सकता है, एक टीम मिल करके सभी काम नहीं होगा। कुछ काम ऐसे हैं जो वह टीम वर्क के आधार पर ही करना पड़ेगा, तब वह काम संभव होगा। अदरवाइज कुछ काम है जो पर्सनल है, एजुकेशन करना, किसी को पढ़ाई करना, वो पर्सनल है। अब वर्क है तो आपस में रह कर के कुछ बड़े हो जाने के बाद आपस में रह करके तर्क वितर्क करता है, आपस में कुछ न कुछ बात पर कोई बात छेड़ दिया, उसका निराकरण समाधान वो एक ग्रुपिंग में होता है। लेकिन वह जैसे जैसे डेवलप करता है तब वह ग्रुपिंग काम करता है। पहले तो आपको सिंगल ही काम करेगा, उसके अनुसार डेवलप करना पड़ेगा। फिर रिसोर्स कॉन्फर्मिंग पीसफुली एमंग देम सेल्फ एंड हेल्प अदर लर्न अबाउट द पीसफुल कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स। पहले तो कहता है हिमसेल्फ, अपने आप को करें, और उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलकर के करें, और तब उसके बाद है एक ग्रुप बनाएं, और तब उसका रूप अलग होगा। जैसे मेला क्या है, मेला एक ग्रुप है, सबका यहाँ से घर से निकलते हैं अलग अलग, वहाँ जाकर के सब मिल गए, और सब मिल गए तो मेला में भी देखते होंगे कभी कभी या प्रसाद चढ़ाने की बात आती है तो होड़ लग जाता है। वहाँ पर भी एजुकेशन काम करता है, कितना शांतिपूर्वक वहाँ पर हैं, लेकिन लग रहा है कि हम जल्दी पहले चढ़ा दें, कोई लग रहा है कि ना पीछे चढ़ा दें। उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, घूस भी दे देते हैं। हाँ, बहुत बड़े चीज़ों में घूस भी देते हैं। तो अब एक एजुकेशन का अर्थ नहीं रह गया, वास्तव में एजुकेशन का अर्थ वहाँ नहीं रह गया, लेकिन हाँ वहाँ पर कुछ अलग ढंग से कर करके हम हो गए तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या मान लिए कि हम गौरवान्वित मान लिए कि हम तो ये काम कर दिए, उससे नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में वह जो इस प्रकार से किया, वह तो समाज को क्या किया, बर्बाद करके किया।
डिस्ट्रॉय करके किया, किसी दूसरे को इस तरह से करके किया है। अब जो उसके पीछे रह गया वो तो कोसता रहेगा बेचारा। इसलिए एजुकेशन वहाँ भी काम करता है। वास्तव में बहुत बड़ी भीड़ है, वहाँ पर भी एजुकेशन काम करता है। उसका रिसोर्स कॉन्फरेंस पीसफुल एंड द पीसफुल, फिर है पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सिविल लाइफ। हम देखो पॉलिटिक्स की बात आ गई, पॉलिटिकल एंड सिविल लाइफ दोनों में भी ये है। अब तो पॉलिटिक्स की बात आ गई तो नेताजी आएंगे, इलेक्शन का समय हुआ, जो हुआ उनके साथ पीछे डोल गया। अब वहाँ पर कुछ बात नहीं रहती, थोड़ी देर के लिए ये हो गया। लेकिन कभी कहीं पर ऐसा होता है कि लोग, पब्लिक भी, जनता भी समझ जाता कि ये तो खाली सिर्फ बात बनाने आते हैं, उनके भाषण में, उनके अति में कोई भीड़ नहीं रहता है। लोग समझ जाता है कि कितना इनके पास है एबिलिटी, इनके पास क्या एबिलिटी है, क्या हम करें, क्या हम नहीं करें, लोग भी समझ जाता है। और उसके अनुसार भी नेता लोग भी उसके बाद समझ लेता है कि वो हमारी यहाँ पर कोई पूछ नहीं है। और पॉलिटिकल एंड सिविल लाइफ, पूरा सिविल लाइफ या पॉलिटिकल में कहीं पर भी इस तरह का। तो सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई कि वास्तव में पीसफुल होने के लिए, शांति होने के लिए एजुकेशन आवश्यक है। हाँ, एक बात कहें कि 100% ये नहीं है, तो हम पहले उदाहरण दे दिए, 100% इसकी ज़रूरी नहीं है। उसके लिए 90% और 10% भी हो जाता, बहुतों से ऐसा देखा गया है। आजकल के सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिना अनपढ़ लोग भी आप जाइएगा गांव घर में तो देखिएगा कि उस तरह का माने बिहेव हम ही को नहीं आता जितना उनको आ रहा है। तो इस तरह की बात है। तो शांति हमसे ज़्यादा हुआ, डेवलप भी करते हैं। अब है कोर पीसेज स्किल, उसमें दिया है कम्युनिकेशंस दिया है, कॉन्फर्म ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, पर्सनल कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट। अब यहाँ देखो एक मैनेजमेंट आ गया सब। अब कोई भी चीज़, जैसे इसका उदाहरण शुरू में दे दिया, मैनेज करने की बात है। एक अनपढ़ व्यक्ति गया जो दोनों उग्र रूप था, उसको कैसे वह शांत कर दिया, उसको कैसे शांत कर दिया, दोनों अपने आप चले गए। तो मैनेजमेंट की बात यहाँ पर आ गई। अब मैनेजमेंट उसी व्यक्ति से होगा जो पूर्ण रूप से अपने आप में अनुशासित है। दूसरे आदमी से मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट वही आदमी कर सकता है जो पूर्ण रूप से अपने आप में अनुशासित है और परफेक्ट है। इसका मतलब वह व्यक्ति ऐसा है कि ना तो गलत चीज़ बोलता है, ना गलत चीज़ करता है, और हमेशा हर एक बात पर वह अडिग है, तभी मैनेजमेंट वह कर सकता है। ऐसे तो मैनेजमेंट दिखावा में हो गया कि मैनेजमेंट हो गया, लेकिन थोड़ा देर बाद निकलेगा तो वो अलग तो बेकार हो गया। और मैनेजमेंट आज तक कायम है, वहाँ जो हम घटना घटाए वो आज तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक पुरखी चला भी गया बुढ़बल लोगों का, लेकिन सही है। तो मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप में पूर्ण रूप से मैनेज है, अपने आप में पूर्ण रूप से अनुशासित है हर एक दृष्टिकोण से, तभी वह मैनेज कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। मैनेजमेंट प्रोमोटिव पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड की बात यहाँ भी आ गई। कहना एटीट्यूड में तो कभी निगेटिव को सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है। निगेटिव सोचेंगे तो कभी भी पीसफुल शांति नहीं होगी, कहीं ना कहीं पर जाके डैमेज करेगा। थोड़ा देर के लगेगा कि इस तरह का है, लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। तो पॉजिटिव सोच तो आपको रखना पड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव सोच है तो लगेगा थोड़ा देर के, थोड़े समय के लिए कष्ट तो लगेगा। सही चीज़ करने में कष्ट लगता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। गलत में कष्ट नहीं लगता, सही में कष्ट लगता है। उस कष्ट को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा। डायग्नोसिस एंड द मूड, तुम आगे फिर अब यहाँ एक शब्द आ गया, वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंस फॉर द पीस। एजुकेशन, पीस के लिए एजुकेशन क्यों जरूरी, फिर आगे द मोस्ट इम्पैक्टफुल रोल ऑफ द एजुकेशन in the pursuit of the peace and the social justice in its ability। वास्तव में अब है उसके लिए एबिलिटी, आपकी क्षमता चाहिए। कहीं भी हम शांति बनाए रखेंगे, शांति करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए। जैसे जज है, जज की बहुत एबिलिटी है, तब ना पूरा रिकॉर्ड को देख करके बताता है कि हाँ इस तरह का फैसला होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं जिनके विरुद्ध में हो गया, लेकिन वास्तव में सही तो सही है तो होंगे। तो पहले चर्चा कर दिए, आपको लगेगा कष्ट, सही चीज़ में तो कष्ट लगेगा, लेकिन उसके लिए एजुकेशन, जस्टिस करने के लिए वास्तव में एजुकेशन की आवश्यकता है। क्योंकि एजुकेशन नहीं रहेगा तो बहुत कुछ नहीं न देख सकता है, न पढ़ सकता है, न उसका फैसला कर सकता है।
ability to the improve learner to the become of the agent of the change in their community by instituting of the consideration social and the emotional skill की चर्चा हमेशा है। लर्निंग बिकम्स ए पावरफुल टूल। अब उसके लिए पावरफुल टूल माने एक ऐसा यंत्र होना चाहिए। यंत्र क्या है? अब यंत्र तो अलग अलग बात है, किस तरह का कंडीशन है उसके अनुसार अलग अलग की बातें हैं। जज लोग क्या करता है? पावरफुल टूल उसके पास क्या आ गया? वकील उसके पक्ष में बहस करता है, जिसका बहस सही आया, जिसका सटीक आया, उस पर वह फैसला दे दिया। तो पावरफुल तो वहाँ टूल होना चाहिए। हर एक एक्टिविटी के रूप में अलग अलग पावरफुल है, एक जगह एक जैसा नहीं रहेगा। पावरफुल टूल काउंटर दैट स्पीच एंड द प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग। वो तो उसको समझ करके अपना काम वह जज करता है। The objective of the piece of education approaching intellectual and the emotional development of the individual, developing a sense of social। अब यहाँ एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सोशलिटी शब्द आ गया। वास्तव में जब हम समाज में रहते हैं तो आपका सेंस तो काम करेगा, उसके बिना कोई सही रूप में नहीं आ सकता है। भले आपका सेंस काम कर रहा है लेकिन उसका हम उल्टा परिणाम दे रहे हैं, उल्टा सोच दे रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वो बहुत बड़ा वो काम करता है सेंस कहीं भी है, और उस रूप में हम लोग इसमें रहते हैं। ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी टूवर्ड्स ऑल। आप देखो यहाँ पर इक्वलिटी भी है और फर्टिलिटी भी है और के लिए। अब आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि कौन किसके लायक है। इक्वलिटी मैंने कहा हुआ कौन किसके लायक है, और फैमिलिटी मैंने भाईचारा। अब है यहाँ पर बहुत बड़ा वाइटल रोल हो जाता है, जो जजमेंट देता है उसके लिए बहुत बड़ा वाइटल रोल है। अब इक्वलिटी को देखेंगे कि भाईचारा को, फैमिलिटी भाईचारा को देखें। अब उस पर अब फिर आ गया सेंस की बात आ गई। अब आपका क्या सेंस करता है, वास्तव में जेन्युइन में क्या है, उस पर आप अब सोचें और करें। फिर है इनेबिलिटी एंड द इंडिविजुअल ऑफ द एक्वायर ऑफ द सिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब देखो नेशनल और इंटरनेशनल की बात फिर आ गई, जो हमारे प्रदीप सर ने वहाँ पर पहले बोल चुके कि नेशनल और इंटरनेशनल युद्ध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या होगा, बल्लेबार हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, कौन शांति उसको दिलाएगा, कौन उसके चल आएगा, ये कहना मुश्किल है। आने वाले समय में क्या होगा तो नेशनल इंटरनेशनल सब जगह पर, लेकिन उसके लिए हमको एजुकेटेड होना चाहिए। लेकिन एजुकेटेड हैं, एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एजुकेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड माने हाईली क्वालिफाइड नहीं, एजुकेटेड हैं, सब तरह की उनकी बात है। लेकिन वहाँ पर वो है स्वार्थ की बात आ जाती है, अनुशासन की बात आती है, आप में क्या स्वार्थ है, उसमें क्या स्वार्थ है, उस पर निर्भर करता है। Creating willingness and the continuous learner, accepting and the possibility for the free discussion and the taking of the decision of the rational basis, approaching other culture and the other culture की बात होती है। तब यहाँ पर फिर वही बात, हमारा कल्चर कुछ है, एक देश में रहने वाले सबका कल्चर अलग अलग है, किन्हीं का कल्चर कुछ है, किन्हीं का कल्चर कुछ है। एजुकेशन तो सब में है। अब कल्चर को देख करके दूसरे समाज, कल्चर में क्या, दूसरे समाज को देख करके हम कितना उसके साथ शांति, हम सद्व्यवहार करना चाहते हैं। जैसे होली और दशहरा में हमेशा ये चर्चा हो जाती है, ईद में हमेशा हो जाता है टाउन में। अब वहाँ तो अलग अलग कल्चर के हो, कहीं न कहीं भिड़िए जाते हैं। अब वहाँ पर कितना एजुकेशन आपका काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में हमें समय से भिड़ने में कोई एक दो व्यक्ति ऐसा रहता है जो ऐसा कर देता है, सबको ऐसा नहीं करता है, और जिसके कारण पूरा समाज है जो उसमें पहुँच जाता है। Taking decision on a rational basis, approaching of the other culture and the overall the basis towards the promotion of the peace। अब है इस तरह की बात करने में बहुत तरह की बात को समझना पड़ता है, एक तरह की बात नहीं है। अदर कल्चर में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक देश में, एक शहर में भी रह करके अदर कल्चर के लोग हैं, भिड़ जाते हैं। तो इस पर तो निर्भर करता है हर एक में वास्तव में टीचिंग या एजुकेशन जो है कितना आपके अंदर, किस तरह का टीचिंग आपके अंदर में है, कितनी आपकी एबिलिटी है सोच में अलग अलग ढंग से, उस पर ही होगा डिपेंड करता है, निर्भर करता है।
बेस टू प्रोमेट पीस इन योर क्लास। अब देखो क्लासरूम की बात आती है, अब सोचो क्लासरूम में जाकर के हम लोग क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं, जो हम लोग सब समझ रहे हैं। कैसे शांति हो नहीं हो, अब इसके लिए हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सभी का वे अलग अलग है। कुछ का वे होगा कि पीछे जो पढ़े हुए हैं उसको दोहरा करके आगे बढ़ना है, किसी को जाके डांट करके शांत रहो, दूर से देख लिया, उठ करते हैं, अलग अलग रूप है। और वो आपके सेंस पर, आपकी एबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप क्लास को कैसे शांत करते हैं, इसी पर निर्भर करता है, कोई दूसरा उसका उपाय नहीं है। यू कैन आस्क चिल्ड्रेन वे टू द थिंक एंड मी। और बच्चे क्या देख करके, एक व्यायाम है, चिल्ड्रेन भी है, सोचता है किस प्रकार के हैं हम, इनके साथ क्या बिहेव करें, ये बहुत बड़ा माने रोल है। क्लास में ही बहुत बड़ा रोल है। बच्चा भी आपको देख रहा है, हम भी बच्चे को देख रहे हैं, आप दोनों में उसका डिसीजन क्या है, मेरा डिसीजन क्या है, आप क्या उसके साथ एल्टीट्यूड करेंगे, कैसा स्किल उसका पर डेवलप करें कि हमारा क्लास शांत हो, ये आप पर निर्भर करेगा। सबका अलग अलग इंडिविजुअल है। 2 है डिक्लेयर योर क्लासरूम पीस जोन। हम कैसे घोषणा कर देंगे क्लासरूम में मेरा शांत है, ये प्रश्न उठता है। अब क्लासरूम शांत है, इसका अर्थ तो ये है कि जो हम कहें उसको सही रूप से सुन ले और जो आवश्यकता पड़े उसको लिखे। और तीसरी बात है, जिसको समझ में नहीं आया खड़ा होकर के पूछे, तभी क्लास जोन हम शांत समझेंगे। खाली सुन लेने से नहीं होगा, आवश्यकता पढ़ने के बाद होगा खड़ा होकर के कोई पूछे, आचार्य जी ये चीज़ नहीं आया, तभी हम क्लास को सही रूप में जोन को पीसफुल समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कितना है कि डर के मारे पूरा शांत में सुन गया, कुछ नहीं आया, आचार्य जी आए और चले गए, वो भी सुन लिया, बात खत्म, वो नहीं है। 3 बातें यहाँ होती है, आप जो बोल रहे हैं सही रूप से सुने और सुन करके जो आवश्यकता पड़े उसको लिखे भी, आचार्य जी को आवश्यकता पड़ता लिखते हैं। और तीसरी बात है वह प्रश्न करें उस पर। ऐसा नहीं कि 100% सब समझ ही जाता है, तब वह क्लास जो उनको पीसफुल समझा जाएगा, शांतिपूर्वक। बाहर से कोई आने वाले भी कोई देखे तो कहेंगे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, पीसफुल मतलब बच्चा नहीं है, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, बाहर से देखने वाला कहे कोई एक बोल रहा है, अपना लोग सुन रहे हैं, लोग पढ़ने वाला पढ़ रहा है। टीच कंटिन्यूस सॉल्यूशन ऑफ द स्किल। अब तो स्किल के द्वारा यदि सॉल्यूशन तो वह करेगा ही, कहना एल्टीट्यूड ऑफ स्किल जो है शुरू में भी इसकी चर्चा है, आपका कैसा स्किल डेवलप करते हैं उसका सॉल्यूशन के लिए। एक ही बात के लिए 2 भैया झगड़ गया, तीसरा भी उसमें आ गया, तीसरा क्या आ गया, दोनों उस पर थोप दिया, तो यहाँ स्किल की बात आ गई। अब हम क्या करें, वो सोच करके ये सब अपने डेवलप की बात वहाँ पर आ जाती है। इसमें दिया है, 1 वे द चिल्ड्रेन एंजॉय वेरी मच इट इज़ थॉट रोल प्लेइंग, चूज ए टाइम व्हेन द एवरीवन इज टुगेदर एंड देयर आर नो अनरिजॉल्व कॉन्फिडेंस। कहता है टाइम व्हेन एवरीवन इज टुगेदर एंड देयर इज no unusual confidence, role play different situation at the notice among of the children. Talk about the peaceful way to the resolve and the confidence you can define and discuss completely taking turn and listening a skill. अब दोनों स्किल पर ही निर्भर कर रहा है। स्किल और एल्टीट्यूड है, उस पर आप क्या सोचते हैं, बच्चा भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं कैसे होना चाहिए, ये आपका इमेजिन पर ही निर्भर करता है क्या आपको करना है। इफ़ यू हैव एन एनुअल इवेंट लाइक ए पोइट्री, रिक्रिएशन, ए म्यूजिक, कहता है शांति के लिए यदि बहुत बड़ा हल्ला, तो हम लोग भी क्लास में कहते हैं बहुत, यदि खासकर छोटे वर्ग में बहुत हल्ला हो रहा है, तो तुम लोग क्या करो जी, ध्यान की स्थिति में आ जाओ, जरा सब शांत हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। और उसके बाद ओम का उच्चारण करें या नहीं करें, उसके बाद जो आपको करना है वो करें। तो फिर हर एक में आपका स्थिति इसी पर निर्भर करता है। अब विद्या भारती तो इसको लागू ही कर दिया है कि आपको हर एक क्लास में हर एक घंटे में कुछ न कुछ कराना है, तो ऐसे ही कराया है। सबका सोच समझ करके विद्या भारती बहुत नीचे में जा करके हर एक चीज़ को सोचता है, उसको लाता है, अलाउ करता है। हम भी एक क्लास में हमेशा करवाते हैं, क्लास 4 में ध्यान व्यक्ति जरूर करा देंगे, तो कोई इधर करते रहेगा, कोई इधर करते रहेगा। तो शांति तो लाने का अपना स्किल है, सोचने का है, कैसे आप करेंगे।
इसी के पॉइंट में दिया है ए पीस एजुकेशन कैन वेरी बाई एज एंड, देखिए ये भी है, सबका एज पर निर्भर करता है। अब छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है या उससे बड़ा है, क्लास में प्रिंसिपल साहब कहते रहते हैं छोटा बच्चा आता है तो हमेशा कुछ न कुछ गप करते रहता है। छोटा बच्चा का ये नेचर है, उसके अनुसार क्या करना होगा। बड़े बच्चे सबके साथ अलग अलग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तब शांत होगा। सब एक जैसा नहीं रहता है, सबका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डेवलपमेंट है, अलग अलग सोचने की शक्ति है। अब यहाँ कहता है बी ए गुड एग्जाम्पल, डू नॉट आर्ग्यू विद द पेरेंट्स यू हैव स्पोक ओवर द अदर टीचर इन द फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रेन, स्पीक स्पिरिटफुली अबाउट द अदर पीपुल, डू नॉट gossip, show kindness. You can be easy to the forget that children are watching your every move and they learn more about the what you than what do you say. कहता चिल्ड्रेन भी आपके प्रत्येक एक्शन को वह रीड कर रहा है। गार्जियन के सामने आप क्या करें, उसके सामने गार्जियन नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, वह रीड कर रहा है, मूव कर रहा है, पूरा बात कर रहा है कि वास्तव में आप क्या कर रहे हैं उसको, और उसके अनुसार वह अपना क्या कहते हैं या अपना निर्णय भी लेता है, और उसी के अनुसार अपना ये नॉलेज को भी अप्लाई करता है कि हमको ये करना है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द पीसफुल एग्जामिनेशन या एजुकेशन, उसका पीसफुल एजुकेशन का क्या स्कोप है, इसके बारे में चलना है। और ये तो आप पर निर्भर करेगा कि हम कैसा उसको खोजें, कैसी हमारी चर्चा है। अब इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। नहीं है। Thank you, sir. Very nice session presented by you, and in this session you told us about to develop skill, and if skill is developed then every type of problem can be solved. And in this topic you have discussed on different issues, and the session was very nice and fruitful. Our teachers will apply these techniques in their classrooms, and the classrooms will be peaceful. It may be hoped. Okay, that's all. Thank you, sir. Thank you, all of you.